Welcome to session 1 of economics. Right? In this session, the topics covered are introduction to managerial economics, features of managerial economics, scope and importance of the study of managerial economics. So let us discuss about managerial economics. Student, as you know, economics is a growing subject, right? So many new branches have been developed by various economists. So as you know, there are various business uncertainties and fluctuations and complexities in the present scenario. So in this case, माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज जो कि इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की थी, वो थियोरीज दे आर फेल टू ऑफर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय बिजनेस यूनिट्स टुडे. सो इन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करने के लिए, इनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया ब्रांच इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया गया, डेवलप किया गया बेसिकली, विच इज नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. राइट? सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज पर इकोनॉमिस्ट मैकनयर एंड मेरियम, he says that managerial economics is the use of economics modes of thought to analyze business situation. हम managerial economics क्यों पढ़ते हैं? so that कि हमें business situations का पता चल सके, हम business situations को, business environment को analyze कर सकें, उसके economic mode को हम analyze कर सकें. राइट? सो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये इस तरीके की साइंस है जो कि डील करती है वेरियस theories of economic principles, concepts, techniques to business management, so that the managers, they can solve business and management related problems. So there is one definition which is given by Professor E.J. Douglas. He says that managerial economics is concerned with the applications of economic principles and methodologies to the decision making process within the firm or organization under the conditions of uncertainty. Student, as you know कि जो business conditions हैं वो सभी in uncertain है. Right? तो uncertain environment के लिए decision making करना it's very tough. So we use economic principles and methodology which help managers to take decisions in this uncertain environment. Now we will discuss the features of managerial economics. First important feature of economics is it is concerned with decision making of this economic nature. मीन्स हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है. बेसिकली इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजंस मॉडल, डिसीजन वेरिएबल्स एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज. सो इट इज कंसर्न्ड विद दिस एस्पेक्ट. राइट? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से मैनेजर्स दे कैन एनालाइज economic nature, right? And on the basis of that they can do the decision making. So they can create the relationships between various economic variables available in an uncertain environment. Second feature is it is goal oriented and prescriptive. So we can say that managerial economics is goal oriented. मीन्स एक अपने कंपनी जो है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स अप्लाई करती है. इट इज प्रेगमेटिक ऑल्सो, इट इज रियलिस्टिक. दैट मीन्स कि ये रियल बिजनेस कंडीशंस, रियल बिजनेस सिचुएशंस को डील करने के लिए हेल्प करती है. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट में किया जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किया जाता है, और एक्सटर्नैलिटीज को एनालाइज करना, उनको प्रिडिक्ट करना, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस. Then it is both conceptual and metrical.
right? So conceptual and metrical, it is both conceptual and metrical, and it also helps the decision maker by providing measurement of various economic variables and their interrelationships. It is concerned with analysis which is prescriptive or normative in nature. So we can say that it is normative in nature, it is a normative science, and as such it is a goal oriented as and prescriptive science also, right? Also managerial economics provide link between traditional economics and the decisions sciences for managerial decision making. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और जो हम अब लेते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजनल साइंस, ये दोनों में लिंक प्रोवाइड करती है, राइट? सो वी कैन से दैट it gives the importance to study non-economic variables also, like impact of technology, environmental forces, social, political and cultural factors, इनका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, ये चीज भी इसमें हम स्टडी करते हैं. Now let's discuss about the scope of managerial economics. Scope is what? Do you know what is scope? Yes, scope indicates the area of study. मीन्स ये बाउंड्रीज बताता है कहाँ तक हमें स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, राइट? सो स्कोप इंडिकेट्स एरिया ऑफ स्टडी, बाउंड्रीज, सब्जेक्ट मैटर एंड विड्थ ऑफ द सब्जेक्ट, right? So business economics is comparatively a new and upcoming subject. So there are various topics which are covered under economics. First is objective of a business firm. स्टूडेंट किसी भी बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज द मेन ऑब्जेक्टिव. बट ये हम ओल्डन डेज की बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या है? प्रेजेंट डे, in the context of present day business environment, many new objectives have come up, right? So there are multiple objectives with multiple dimension in nature, like competitive banna, some of them are competitive while others are supplementary, right? And some are interconnected and others are opposing to each other. So there are economic goals, social goals, organizational goals, human goals. So there are various objectives which an organization want to achieve. So there are managerial theories as well as behavioral theories to achieve these objectives. तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इन सब चीज़ों में, इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करती है, राइट? नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, राइट? सो हेयर इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स and services. Basically a firm produce different kinds of products and services. It has to meet the requirements of consumer, right? Consumers की क्या डिमांड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस चीज़ को मीट आउट करना किसके लिए ज़रूरी है? एक फर्म के लिए ज़रूरी है. तो बेसिक प्रॉब्लम एक फर्म की क्या आती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस करे और किसके लिए प्रोड्यूस करे, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस. ये सारी प्रॉब्लम एक बिजनेस फर्म के सामने आती है क्योंकि वही सप्लायर है प्रोडक्ट की मार्केट में, राइट? तो वो क्या प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, कितना अमाउंट में वो प्रोड्यूस करे, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन, राइट? सो दिस इज बीन स्टडी इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑल्सो, राइट? सो डिमांड को एनालाइज करना और डिमांड को फोरकास्ट करना, दिस वी विल स्टडी इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. So in managerial economics we'll study the determinants of demand, nature, composition, characteristics of demand,
इलास्टिसिटी क्या है डिमांड की, ये सब चीजें, ये सब कंपोनेंट्स हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और उसके बेस पे हम डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। थर्ड थिंग आता है हमारे पास रिस्क एनालिसिस। यस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिस्क को भी एनालाइज करता है। दैट मीन्स कि फर्म जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है वो मार्केट में उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, राइट, कितना रिस्क है उसका, राइट। रिस्क इज व्हाट, इन लिटरल सेंस वी कैन से रिस्क इज अ वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स। जो फर्म ने रिटर्न्स को एस्टिमेट किया है, क्या वो एक्चुअल में उतने रिटर्न्स अर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दिस वी कैन एनालाइज थ्रू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय अप्लाइंग वेरियस इकोनॉमिक थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज production and cost analysis. This is very important, right? So production is what? Production क्या है? In journal term we can say transformation of inputs into outputs. Production में क्या करते हैं? Raw material input कराते हैं, वो process होता है और finished product बन के तैयार होती है, राइट। तो ये हमारा फिजिकल टर्म्स में भी हो सकता है और मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। सो फिजिकल प्रोडक्शन इज डील्स विथ हाउ आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा बाय एम्प्लॉइंग वेरियस फैक्टर इनपुट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, राइट। तो आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना, दिस इज द बेसिक गोल ऑफ एनी फर्म. So in production analysis we deal with production function, law of returns, return to scale, economics of scale, right? तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम एनालाइज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगेगा, राइट? वी ऑल्सो यूज कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, cost control, cost reduction, cost cutting and cost minimization, right? So these got top priority in production and we also analyze cost. तो इसके अंदर cost analysis के अंदर हम cost के सभी concepts को, सभी elements को study करते हैं. Next is the competition. Yes, we have to study market structure. राइट तो कंपटीशन कैसा है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, किस टाइप का कंपटीशन है, डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है. सो मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज रखना, मार्केट में कंडीशंस कैसी चल रही है, ये these things are important for any kind of business. Number of sellers कितने हैं, number of buyers कितने हैं, what is the nature, extent and degree of competition. This determines the policies, nature of policies which is to be adopted by the firm in the market. Next is the pricing and output. So pricing decision is also important, right? एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना, this is very much important. So pricing decision is related to fixing the price of goods and services. That depends on the पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट करती है या वो किस टाइप के प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, राइट. सो प्राइस सेटिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म. सो वी कैन से दैट कि जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा और प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. We have to study market conditions, we have to study objectives of the firm, pricing methods क्या होंगे, policies क्या रखनी है, ठीक है. तो प्राइस फोरकास्टिंग कैसे करेंगे हम, मार्केट चैनल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, ये सब चीज हम इंक्लूड करेंगे प्राइसिंग एंड आउटपुट में. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज व्हाट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मींस किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. तो प्रॉफिट जो है इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन. तो उसमें मार्जिन कितना रखेंगे हम, कॉस्ट जितनी कॉस्ट आ रही है प्लस मार्जिन, दैट इज व्हाट प्रॉफिट पार्ट, राइट. तो ये चीज एनालाइज करते हैं हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग.
अब देखिए कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट। तो फर्म के जितने प्रॉफिट्स होंगे उसी के हिसाब से वो उसी के अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट करेगी। सो इट इज ऑल्सो यू कैन से क्रूशियल एरिया ऑफ बिजनेस। सो जो बिजनेस की सक्सेस है इट डिपेंड्स ऑन कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करती है, इसको प्रॉपरली मैनेज करती है या नहीं करती है, राइट। सो बेसिकली वन हैज टू स्टडी द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कैपिटल और उससे रिटर्न कितना आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम यही पढ़ते हैं कि फर्म को इनिशियल कॉस्ट कितनी लग रही है प्रोजेक्ट में और उससे फ्यूचर कैश फ्लो और फ्यूचर रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। So under capital management or capital budgeting, one has to study capital requirement, methods of capital mobilization, optimal allocation of capital, selection of highly profitable projects, cost of capital, return on capital, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं अंडर कैपिटल मैनेजमेंट। सो इट इज द पार्ट, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल बजटिंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द product policy, sales promotion and market strategy. Yes, this is also one of the area which is included in managerial economics, right? तो managerial economics में जैसे हमने बात की कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स कि हमारी प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट हम मार्केट में निकालेंगे। इट डिपेंड्स ऑन कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, what sales promotional technique we will use, right? So by this we can achieve our organizational objectives. There is managerial economics as an economics discipline, right? तो as a subject हम managerial economics पढ़ते हैं। economics is divided into two parts. One is macroeconomics and second one is microeconomics. अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम्स, राइट। तो इसमें आता है हमारा मनी, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब एक्टिविटीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। प्लस जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, रीजनल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड पार्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, विच इज एट स्मॉल लेवल। तो बेसिकली इसके अंदर हम सेक्टर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ आईटी, ये सब चीजें हम इस चीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को, इन्हें डिस्कस करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड सम स्टेट्स मेक डिसीजंस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टिपिकली इन मार्केट्स वेयर गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड्स को स्टडी करते हैं, मीन्स हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Second thing is macroeconomics, right? Macroeconomics is also one of the branch of economics that deals with performance, structure and behavior of national or regional economics, right? तो macroeconomics में basically macroeconomics it is related to economic systems, national income, ट्रेड साइकिल, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किस टाइप की हो रही है, ये सब चीजें, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा फर्म के ऊपर, ये सब चीजों की स्टडी जब हम करते हैं तो ये स्टडी होती है हमारी अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो अलॉन्ग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द टू मोस्ट जनरल फील्ड्स इन इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं दे विल स्टडी एग्रीगेट, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडाइसिस, ये सब चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज इट गिव्स गाइडेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ की वेरिएबल्स
बिजनेस के अंदर की वेरिएबल्स क्या है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस को हम की वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई की वेरिएबल। की वेरिएबल मीन्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसके बेस जो कि बेस प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स business executives to understand the various intricacies of business and managerial problems। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैनेजर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के में ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। मीन्स कि इसके अंदर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक थियोरीज अप्लाई करके मैनेजर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड दे कैन टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। It also provides the necessary conceptual, technical skills, toolbox of analysis to solve various business problems. Here, there are various techniques like demand forecasting techniques are there to analyze the business problems. It also helps in optimum use of scarce resources of a firm to maximize its profits, right? So, basically, every firm want to optimally utilize its resources। मीन्स अपने बिजनेस जो है वो ये चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दे, ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, एफिशिएंटली यूटिलाइज करे, जिससे कि उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स in optimally utilization of resources. Next is it also helps a firm in forecasting the most important economic variables। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस, ये सब क्या है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इन सब को फोरकास्ट करने में, एस्टिमेट करने में और इन सब चीज़ों के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। So this is the end of session 1. At the end there are 2 questions to answer. First, explain the concept of managerial economics, and second is what is the scope of managerial economics. Thank you very much.